Okay, ready students. Chalo. Now question number 5. Question number 5 is state with the reason whether the following functions have inverse or not. है ना, फंक्शन को इनवर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा. दैट मीन्स यू हैव टू चेक whether the given function is invertible function or not. इन्वर्टिबल है कि नहीं वो चेक करना है. So function f from 1 2 3 4 1 2 3 4. This is the domain of function. Domain 2, codomain of function is 10. Function is given. Done. And function is defined as definition of function f equal to order pair are given. So it's a 110, 110, 210, 310, and 410. This is part 1 of this question. Second part of the question, है ना, सारे क्वेश्चन पहले लिख देते हैं, उसके बाद फटाफट चेक करेंगे. फंक्शन g is given. Function g from 5 6 7 8. Function g from 5 6 7 8 to codomain is 1 2 3 4. 1 2 3 4. Function is definition of function. Order pairs are given. G is equal to order pair are 5 4 6 3 5 4 6 3 7 4 8 2 7 4 8 2. Order pairs are given. Done. And one more function h is given. यहाँ पर लिखते हैं थर्ड function h from 2 3 4 5, है ना, 2 3 4 5 2 2 3 4 5 2 7 9 11 13 7 9 11 13. And function is defined as order pair h. Order pairs are given 1 10. ये क्या हुआ, h equal to 2 3 4 5 2 3 4 5 h equal to 2 7 2 7 3 9 4 11 and 5 13. Now we have to check whether the given function has inverse or not. ये सारे फंक्शन का इनवर्स फंक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो चेक करना है. So function is invertible function or not, वो चेक करना है. So what is the condition for the invertible function? For any function to be an invertible function, है ना, ये हमें पता है. For any function to be an invertible function, that function must be bijective function. फंक्शन कौन सा फंक्शन हो जाना चाहिए, बाइजेक्टिव. और फंक्शन बाइजेक्टिव कब होगा, जब वो फंक्शन 1 1 होगा, है ना, जब वो फंक्शन 1 1 होगा एंड 1 2 होगा, दोनों होना चाहिए. इफ द फंक्शन इज 1 1 and 1 2, वी कैन से गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन. और सारे बाइजेक्टिव फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन होते हैं. तो यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन दी हुई है, तो इसको चेक करना है कि वेदर दिस फंक्शंस आर इन्वर्टिबल फंक्शन और नॉट. तो देखो, दिस इज डोमेन, दिस इज कोडोमेन. सो मैपिंग डायग्राम से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा. देखो, दिस इज फंक्शन f फ्रॉम इट्स डोमेन टू कोडोमेन, है ना. डोमेन एलिमेंट्स आर 1 2 3 4. कोडोमेन ओनली वन एलिमेंट इज देयर. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन? फंक्शन फॉर 1 इक्वल टू, फॉर x इक्वल टू 1, आउटपुट ऑफ फंक्शन इज 10, है ना. 1 की इमेज 10 है, तो 1 का रिलेशन 10 के साथ है. 2 की इमेज 10 है, 2 का रिलेशन 10 के साथ. 3 की इमेज 3 का रिलेशन 10 के साथ. इमेज ऑफ 4 is 10, 4 का रिलेशन 10 के साथ. So here image of all the function is 10, है ना. It's a many to one function. It's a many to one function. This is not 1 1 function and this is not 1 1 function. अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं है. That means inverse not exist. आंसर दे दिया. क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है? So here this is many to one function, so inverse does not exist, है ना. ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते. चलो उसके बाद फंक्शन g is given. फंक्शन g is from its domain to codomain. डोमेन एलिमेंट्स इन डोमेन आर 5 6 7 8. तो ये 5 6 7 8. कोडोमेन में 1 2 3 4 1 2 3 4. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन g? 5 की इमेज 4, 5 की इमेज 4, उसके बाद 6 की इमेज 3, 6 की इमेज 3, 7 की इमेज 4, 7 की इमेज 4, 7 की इमेज 4, 8 की इमेज 2. Image of 8 is 2. So here again students, here we can see image of 5 and image of 7 is 4. Image of 5 and 7 is 4. Two elements have same image
Hence, this is not one function. This is not one function. One function नहीं है, तो this is not invertible. This is not invertible function. इसका inverse exist नहीं होगा, है ना? इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा. चेक करते हैं फंक्शन h को. ये इसकी मैपिंग डायग्राम ड्रॉ करें. ये इसका डोमेन हो गया, ये इसका डोमेन कोडोमेन हो गया. दिस इज फंक्शन h. एलिमेंट्स इन डोमेन. डोमेन के अंदर कौन से एलिमेंट है? ये वाले 2, 3, 4, 5. कोडोमेन में क्या आएगा? 7, 9, 11, 13. Done. Now what is the definition of function h? h for 2, input 2, it will give output 7. तो 2 की इमेज 7, 3 की इमेज 9, 7 की इमेज 4 की इमेज 11, and image of 5 is 13. So here each and every element in this function h has unique and distinct image. Unique and distinct image. Hence we can say this function is one function. This function is one. Each and every element has unique and distinct image in its codomain, and all the elements of codomain are occupied. देखो, all the elements in codomain are occupied. All the elements in codomain has pre-image in domain. Hence we can say this is onto function. So given function is one and onto, and hence we can say this is invertible function. And inverse of this function exists. We can find the inverse of this function h. Clear, students? So pause this video and note it down. Okay, now question number 6. So here question is, पहले तो question read करो अच्छी तरह से. Show that function f from -1 1 close interval -1 1 to r. Domain and codomain is given. Function is f of x equal to x upon x plus 2. Here function is not defined on x equal to 2, है ना? So that this function is one function, है ना? ये function one function ऐसा प्रूव करना है. एंड सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, उसमें आपको प्रूव करना है फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन, है ना? इनवर्स ऑफ फंक्शन को लिखेंगे f इनवर्स, एंड द फंक्शन इज इनवर्स फंक्शन इज -1 1, है ना? ये फंक्शन के लिए है. फंक्शन f इज क्लोज इंटरवल -1 1 टू रेंज ऑफ दिस फंक्शन, है ना? तो देखो क्या दिया है, कुछ नहीं. वन फंक्शन इज गिवन, वी हैव टू शो दिस फंक्शन इज वन फंक्शन, और उसके बाद ये फंक्शन का हमें इनवर्स निकालना है. क्या करना है? इनवर्स. सो नाउ वन फंक्शन के लिए, है ना, करते आ रहे एक्सरसाइज 1.2 में क्या करना है. सो फॉर वन फंक्शन we are taking two elements x1 and x2 from the domain of this function is -1 to 1 close interval -1 to 1. तो ये डोमेन में से हमने दो एलिमेंट ले लिए. उसके बाद हम अज्यूम करते हैं, क्या अज्यूम करते हैं कि लेट्स से फॉर दिस टू एलिमेंट्स the image of these two elements are equal, and hence we have to prove these both elements are equal. So f of x1 equal to f of x2. So f of x is x upon x plus 2. So this will be x1 upon x1 plus 2. For x2 it will be x2 upon x2 plus 2. Implies cross multiply करो, it's a x1 x2 plus 2 x1 equal to again x1 x2 plus 2x2. ये कट हो गया, इसके बाद 2 कट हो गया, तो ये आ जाएगा x1 equal to x2. So here x1 equal to x2. Two images are equal, two elements, है ना? For these two elements, if their images are equal, elements are equal, and hence we can say our function f of x is one function. ये प्रूव हो गया फर्स्ट पार्ट, ये प्रूव करना था वन फंक्शन. डन. उसके बाद सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इसके बाद हमें प्रूव करना है we have to find the inverse of this function, है ना? ये फंक्शन का इनवर्स निकालना है. तो इनवर्स निकालने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं, है ना? एक बार फिर से देख लो. सो फॉर द इनवर्स ऑफ फंक्शन f क्या करना होता है? वी हैव टू फॉलो 3 स्टेप्स. तो स्टेप नंबर 1 में क्या करना है? देखो स्टेप नंबर 1 में क्या होता है? तो स्टेप नंबर 1 में जो फंक्शन दिया होता है ना, डेफिनेशन देखो,
f of x equal to x upon x plus 2. So for this given function f from x to y, we require another function g of y. So f of x is given. तो पहले तो हम फाइंड करेंगे x in terms of y, x in terms of y फाइंड करेंगे, that means हम another function g of y फाइंड करेंगे. क्या फाइंड करेंगे? another function g of y. g of y के लिए हम राइटिंग यहाँ पर हम x को y के टर्म में लिख रहे हैं. So to find x in terms of y, we are getting function g of y. So देखो here function f of x is given. So function f of x is given, that is equal to x upon x plus 2, that is equal to हम क्या करेंगे? y लेंगे, है ना. फर्स्ट स्टेप राइटिंग x in terms of y. Given function is in term of x, we require one another function in terms of y. So writing x in terms of y. So this will be simplification, x equal to cross multiplication xy plus 2y, taking this xy term in the left hand side. So again x common, it's a 1 minus y equal to 2y, and therefore our x will be 2y upon 1 minus y. So this is x in terms of y. This is x in terms of y, है ना. x आ गया y के फॉर्म में. वो क्या है हमारा? वो हमारा फंक्शन g of y है. Hence we can say our function g of y is 2y upon 1 minus y. Done. So इनवर्स फंक्शन फाइंड करने के लिए हमें एक फंक्शन g of y फ्रॉम इट्स कोडोमेन टू डोमेन चाहिए. तो यहाँ पर फंक्शन g है, तो g के लिए, है ना, इसका डोमेन क्या होगा? तो कोडोमेन ऑफ दिस फंक्शन तो r. और यहाँ पर हमारा फंक्शन y इक्वल टू 1 के लिए डिफाइंड नहीं है, फिर y इज इक्वल टू नॉट 1. सो इसका डोमेन होगा r माइनस 1 2, है ना. इसका कोडोमेन क्या होगा? डोमेन ऑफ फंक्शन f, इट्स अ माइनस 1 to 1. ये हमारा फंक्शन g आ गया. डन. नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, स्टेप नंबर 2 क्या चाहिए हमें? स्टेप नंबर 2 में चाहिए fog y इक्वल टू y, एंड स्टेप नंबर 3 में हम प्रूव करेंगे gof ऑफ x इक्वल टू x, है ना. ये दोनों रिजल्ट प्रूव करेंगे. देन वी कैन से दिस फंक्शन इज नथिंग बट द इनवर्स ऑफ गिवन फंक्शन. अगर ये प्रूव हो गया तो लेट्स ट्राई टू प्रूव दिस. स्टेप नंबर 2, fog y इक्वल टू y लाना है. सो लेट्स ट्राई टू प्रूव इट. fog y, तो fog y क्या होगा? इट्स अ f ऑफ gy. नाउ व्हाट इज फंक्शन f? फंक्शन f x डालेंगे तो हो जाएगा x अपॉन x प्लस 2. अगर फंक्शन में हम g ऑफ y डालेंगे तो हो जाएगा g ऑफ y अपॉन g ऑफ y प्लस 2. सो दिस इज इक्वल टू g ऑफ y अपॉन g ऑफ y plus 2. This is equal to, now what is our g of y? G of y we have already derived, it is 2y upon 1 minus y upon 2y upon 1 minus y plus 2. इसका सिंप्लीफिकेशन करो तो क्या होगा? it will be 2y upon 2y plus 2 minus 2y, and this is equal to y, and hence we have proved that fog y equal to y. fog y equal to y. स्टेप नंबर 2 हो गया. डन. नाउ फॉर दिस स्टेप नंबर 3, वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? गोफ x इक्वल टू x प्रूव करना है. सो व्हाट इज गोफ x? गोफ x इज नथिंग बट द g ऑफ f ऑफ x. व्हाट इज फंक्शन g? फंक्शन g इनपुट में हम y डालेंगे, वो हमें देगा 2y अपॉन 1 माइनस y. तो y की प्लेस पर सपोज f ऑफ x डालेंगे तो फंक्शन g क्या करेगा? It will be multiply 2 with f of x and 1 minus f of x देगा, है ना. 2y को रिप्लेस करेगा f of x से, 2 into f of x upon 1 minus f of x. Now again, what is our f of x? f of x is given function x upon x plus 2. So this will be 2 into x upon x plus 2 upon 1 minus x upon x plus 2. Simplify this. This will be 2x upon क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस x प्लस 2 माइनस x से x गया, 2 से 2 गया, दिस इज इक्वल टू x. सो हियर वी हैव प्रूव दैट गोफ x इक्वल टू x. स्टेप 3 भी हो गया. डन, है ना. डेफिनेशन, उसके बाद क्या हम लिखेंगे? देयरफॉर वी कैन से
g of y is inverse of function f, and hence we can say inverse of function f equal to g of y. g of y हमारा फंक्शन है, वो हमारा इनवर्स ऑफ फंक्शन होगा, और वो क्या है हमारा 2y अपॉन 1 माइनस वाई। डन, ये आ गया इनवर्स ऑफ एफ। लेकिन यहाँ पर गिवन फंक्शन एफ इज इन टर्म्स ऑफ एक्स के फॉर्म में, तो हमारा जो इनवर्स है वो एक्स के फॉर्म में होना चाहिए। तो आप इसको ऐसे ही आंसर लिख सकते हो, या फिर you can convert our answer in terms of x. So replacing this y with x, so this will be 2x upon 1 minus x. So inverse of function is 2x upon 1 minus x. Clear students? So this is how we can find inverse of any given function. Clear students? So pause this video and note it down. Seventh question, same as question number 6. देखो कैसे करना है। So here one function f from R to R, real number to real number is given. Define as f of x equal to 4x plus 3. Done. So that f is invertible function, है ना? f invertible function ऐसा prove करना है, and find the inverse of function. Two part of the question are there. So first part, we have to prove this function is invertible function, है ना? f is invertible. फंक्शन f दिया हुआ है, उसको इनवर्टिबल प्रूव करना है। तो सबको पता है कोई भी फंक्शन इनवर्टिबल फंक्शन कब होगा, जब वो फंक्शन 1 1 and 1 2 होगा। सो दैट मींस वी हैव टू प्रूव दिस फंक्शन f of x is 1 1 and इनवर्टिबल। डन। तो 1 1 के लिए पता है सबको, for 1 1 function what we are doing, we are taking two elements x1 and x2 from this domain। डन। उसके लिए हम एज्यूम करेंगे कि दो एलिमेंट के लिए उसकी इमेज इक्वल है। सो f of x1 इक्वल टू f of x2। अगर इमेज इक्वल आ गई तो दोनों एलिमेंट इक्वल आने चाहिए। सो f of x1 इक्वल टू f of x2। f of x is 4x plus 3। So what is 4 f of x1? It's a 4x1 plus 3 equal to f of x2। So it's a 4x2 plus 3, है ना? x1 की x की जगह पर x1 and x की जगह पर x2 पुट करना है। सिंप्लीफाई करो तो 4x1 इक्वल टू 4x2। हियर वी कैन से x1 इक्वल टू x2। x1 इक्वल टू x2 आ गया, एंड हेंस वी कैन से और फंक्शन f of x is 1 1। फंक्शन इज 1 1। इसको इनवर्टिबल प्रूव करना है तो 1 1 एंड 1 2 दोनों चाहिए। तो 1 1 तो आ गया। नाउ फॉर 1 2, तो मैथमेटिकली आपको पता है 1 2 के लिए क्या करते हैं, है ना? राइटिंग अवर x इन टर्म्स ऑफ y, x को y के फॉर्म में लिखते हैं, है ना? सो गिवन फंक्शन इज f of x, so given function is f of x, and that is equal to 4x plus 3. Now taking this f of x equal to y, so 4x plus 3 equal to y आ गया। 4x plus 3 equal to y, अभी इसको x के फॉर्म में लिखना है, therefore this one is 4x plus 3 equal to y students। डन। तो इसको x के फॉर्म में लिखना है तो क्या होगा, 4x equal to y minus 3, therefore x equal to y minus 3 by 4। So this is our x in terms of y। Done। x in terms of y। अभी चेक करेंगे कि y की जो सारी वैल्यू को डोमेन में है उसके लिए हमें कोई प्री इमेज डोमेन के अंदर मिल रही है कि नहीं मिल रही। So this is our x। So what is our function f of x? Our function f of x is 4x plus 3। Now what is the value of this x? Or value of x is y minus 3 by 4। So it's a y minus 3 by 4। x को रिप्लेस करेंगे y माइनस 3 बाई 4 से, तो यहाँ पर x को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इट्स 4 इंटू y माइनस 3 बाई 4 प्लस 3, 4 से 4 कट हो गया, y माइनस 3 प्लस 3, y माइनस 3 प्लस 3। तो देखो f ऑफ y माइनस 3 इक्वल टू 4 के लिए y आ गया, है ना? हमने डिस्कस किया था कि y आना चाहिए। सो हियर वी कैन से f इज ऑन टू। So students, our f is 1 1 and 1 2, and hence we can say our f means f of x is bijective function, and hence our f is invertible। Our f is invertible। ये हमें प्रूव करना था, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। डन। प्रूव दैट फंक्शन f is invertible function। Now second part of this question, we have to prove we have to find inverse of this function।
सो सेकंड पार्ट यहीं से स्टार्ट करते हैं. वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन. फाइंड एफ इनवर्स. एफ इनवर्स कैसे निकालते हैं? तो प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था. टू फाइंड इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन वी रिक्वायर 3 स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप राइटिंग x इन टर्म्स ऑफ y, है ना, राइटिंग x इन टर्म्स ऑफ y. तो ये जो मिल रहा है हमारा फंक्शन g ऑफ y मिल रहा है ना, तो यहीं से डायरेक्ट लिख देंगे, है ना, ये स्टेप यहाँ से. तो हमारा फंक्शन g ऑफ y आ गया. राइटिंग x इन टर्म्स ऑफ y, x को y के टर्म में लिखेंगे तो हमारा फंक्शन g ऑफ y मिलेगा. सो वो फंक्शन g ऑफ y इज y minus 3 by 4. Done. So now we are having two functions, f of x equal to 4x plus 3 and g of y equal to y minus 3 by 4. तो उसके लिए हमें क्या प्रूव करना होता है? स्टेप 1 स्टेप 2 एंड स्टेप 3. fog y equal to y प्रूव करना होता है. fog y equal to y and gof x equal to x प्रूव करना होता है. तो पहले प्रूव करेंगे fog y equal to y. So what is fog y? So fog y is nothing but the f of gy, है ना, फंक्शन ऑफ g ऑफ y. तो फंक्शन ऑफ x क्या कर रहा है? 4x plus 3 कर रहा है. x की प्लेस पर अभी क्या है? g ऑफ y. तो ये मल्टीप्लाई करेगा 4 into g ऑफ y plus 3 देगा. नाउ व्हाट इज आवर g ऑफ y? g ऑफ y डिराइव कर लिया x in terms of y. So it's a 4 into g of y. g of y is y minus 3 by 4 plus 3. सिंप्लीफाई करो, 4 से 4 ये y आ गया, है ना. दैट मीन्स fog y इक्वल टू y हमने प्रूव कर दिया. उसके बाद प्रूव क्या करना होता है? गोफ x g of f of x इक्वल टू x प्रूव करना होता है. डन. सो व्हाट इज g of f of x? इट्स अ g of f of x, है ना, फंक्शन g of f of x. g of y क्या कर रहा है? g of y में से 3 सब्ट्रैक्ट कर रहा है और डिवाइड बाय 4 कर रहा है. y की प्लेस पर अभी क्या आ गया? f of x. तो क्या करेगा? f of x में से 3 सब्ट्रैक्ट करेगा, डिवाइड बाय 4 करेगा. तो दिस विल बी इक्वल टू f of x माइनस 3 करेगा, डिवाइड बाय 4 करेगा. नाउ व्हाट इज आवर f of x? f of x इज 4x plus 3. सो 4x plus 3 माइनस 3 डिवाइड बाय 4. 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, तो दिस इज इक्वल टू x. हेंस और गोफ x इक्वल टू x. देखो स्टेप 3 भी आ गया, है ना. fog y इक्वल टू y आ गया, गोफ x इक्वल टू x आ गया और हमने एक फंक्शन g ऑफ y निकाल दिया. डन. तो उसके बाद क्या लिखेंगे? हेंस वी कैन से g ऑफ y इज इनवर्स ऑफ f. सो f इनवर्स इक्वल टू g ऑफ y हमारा इनवर्स होगा. तो g ऑफ y क्या है हमारा? y minus 3 by 4. लेकिन और फंक्शन f इज इन टर्म्स ऑफ x, तो इनवर्स को x के फॉर्म में लिखेंगे. सो अवर g ऑफ x इक्वल टू x minus 3 by 4. दिस इज इनवर्स ऑफ फंक्शन. डन. ये हमारा आप सबका, है ना, सबका आंसर. क्लियर स्टूडेंट्स? सो पॉज दिस वीडियो एंड नोट इट डाउन. Question number 8. So here we are given that function f from question number 8. Function is f from function f from r to r plus is there, है ना, positive real number to close interval 4 to infinite. And function f of x is x square plus 4. So that f is invertible function with inverse given by, है ना, दो पार्ट. Again we have to prove this is invertible function. This is invertible function. And second part we have to prove f inverse of function is f inverse y, which is given by f inverse y. This is equal to root y minus 4. Done. Where r plus is set of all non-negative real numbers. Positive real numbers आपको consider करने हैं. Done. तो इसको पहले तो इन्वर्टिबल फंक्शन प्रूव करना है, उसके बाद इसका इनवर्स निकालेंगे. तो इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए क्या करना होगा? 1 1 in 1 2 प्रूव करना होगा. सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट. सो नाउ
we are taking two elements x1 and x2 from this domain, है ना, set of non-negative real numbers. Non-negative real numbers means positive real numbers, negative नहीं आना चाहिए. So let's say two images are equal, f of x1 equal to f of x2, images equal हो गई तो function क्या होंगे, तो x1 square plus 4 equal to x2 square plus 4, which implies x1 square equal to x2 square. यहाँ पर x1 इक्वल टू प्लस और माइनस x2 नहीं आएगा, सिर्फ x2 आएगा, प्लस आएगा, है ना, क्योंकि x1 x2 कहाँ पर है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, नेगेटिव की कोई गुंजाइश ही नहीं है. सो x1 इक्वल टू x2 एंड हेंस वी कैन से और फंक्शन f इज 1 1 फंक्शन. फंक्शन f इज 1 1 फंक्शन. डन. अभी ऑन टू के लिए प्रूव करें. सो ऑन टू के लिए क्या करना होता है, फंक्शन को x को y के टर्म में लाना होता है. सो f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू y ले लिया. डन. नाउ राइटिंग x इन टर्म्स ऑफ y, x को y के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 4. अभी यहाँ से फिर से हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आप बोलेंगे सर प्लस और माइनस, लेकिन मैं बोलूंगा सिर्फ प्लस y माइनस 4. प्लस और माइनस तो लेना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर r प्लस दिया हुआ है ना, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो नेगेटिव तो कहीं पर भी नहीं आएगा. तो x हमारा आ गया ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 4. तो इसके लिए अभी हम फंक्शन चेक करेंगे f ऑफ x, है ना, कहाँ गया, ये रहा फंक्शन f ऑफ x. व्हाट इज f ऑफ x, इट्स अ x स्क्वायर प्लस 4. अभी x की प्लेस पर जो डिराइव किया ना हमने ये पुट करेंगे, x इक्वल टू रूट y माइनस 4, तो इट्स अ रूट y माइनस 4. तो ये होगा रूट y माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 1. तो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, तो बाकी बचेगा, क्या बचेगा बच्चों की बोलो, क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ y बचेगा. डन. तो f ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y था इक्वल टू y आ गया एंड हेंस वी कैन से और फंक्शन f इज ऑन टू. ऑन टू आ गया. तो फंक्शन f हमारा 1 1 है, फंक्शन f हमारा ऑन टू है, दैट मीन्स बाइजेक्टिव है, f इज बाइजेक्टिव, f is bijective and hence we can say f is invertible. Function f is invertible function. This is first part of this question. Second part of this question, we have to find inverse of this function. We have to find the inverse of this function. So inverse of